We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Hello friends, welcome. In this video we are going to discuss application life cycle, Android application life cycle. An Android application has limited control over their own life cycle. Application components must listen for changes in the application state and react accordingly. See, when an application is being installed, up to the time it is uninstalled, entire time it remains in the memory of mobile, okay, as well as when application starts, up to the time it destroys, it is also considered as its one duration, okay. So within this application there are many components which are playing their role accordingly. Each of these components should be designed in such a manner that they react properly during the entire application life cycle. Each Android application runs in its own process, each of which is running in a separate instance of DVM, that is Dalvik Virtual Machine. Memory and process management is handled by runtime. Management of this application is done by this virtual machine or the runtime of Android operating system. Applications priority and its stats. See, Android operating system is a priority based operating system. It means that there may be situation, there may be some case when there are many applications which want to execute, but due to resource constraint, memory constraint, operating system can schedule few of them. So which application to select or to schedule for execution should be decided. So at some level it decides, Android operating system take decision based on their priority. Android is very aggressive in managing its resources. Anytime for our application may be killed to reclaim the resources without warning. देखो, आपकी एप्लीकेशन जब रन हो रही है तो वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के सानिध्य में रन हो रही है, छत्र छाया में रन हो रही है. किसी भी समय पर आपकी एप्लीकेशन को बिना बताए उसका एग्जीक्यूशन स्टॉप किया जा सकता है और इसका कारण हो सकता है कि उसे रिसोर्सेज की आवश्यकता हुई है और आपकी एप्लीकेशन ने कुछ रिसोर्सेज अक्वायर करके रखे हैं कि जो ओएस को अभी ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपकी एप्लीकेशन को बिना किसी वार्निंग के, बिना बताए रिमूव किया जाएगा और स्टॉप किया जाएगा. सो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वेरी एग्रेसिव इन दिस मैनेजिंग इट्स रिसोर्सेज. आपकी एप्लीकेशन ने कोई रिसोर्स को जकड़ के पकड़ के रखा है कितने टाइम से और उसको वो यूज़ ही नहीं कर रही, तो भी ओएस उसे स्टॉप कर देगी. द ऑर्डर इन विच द एप्लीकेशंस आर किल्ड इज डिटरमाइंड बाय द प्रायोरिटी ऑफ द एप्लीकेशन. एन एप्लीकेशंस प्रायोरिटी इज इक्वल टू दैट ऑफ इट्स हाईएस्ट प्रायोरिटी कंपोनेंट. देखो, कौन सी एप्लीकेशन को स्टॉप करना, सपोज कि फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कैपेसिटी है फॉर एग्जांपल वो ऐसी है कि वो एक साथ 5 एप्लीकेशन को रन कर सकती है. तो अभी ये सिचुएशन है कि भाई 5 एप्लीकेशन ऑलरेडी रनिंग मोड में है तो उसकी कैपेसिटी फुल है. अब कोई नई एप्लीकेशन रन होने की डिमांड लेकर खड़ी है. अब डिमांड आई है तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो देखेगी उसको कि ये जो एप्लीकेशन नई डिमांड कर रही है उसकी प्रायोरिटी कितनी है, क्या उसकी प्रायोरिटी जो अभी एप्लीकेशंस रन हो रही है उसमें से किसी एप्लीकेशन से ज़्यादा प्रायोरिटी है इसकी. अगर है
तो कम प्रायोरिटी वाली एप्लीकेशन को कि जो अभी रन हो रही है उसको स्टॉप करके इसको चांस दिया जाएगा। ओके, सो प्रायोरिटी बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो किसी भी एप्लीकेशन की प्रायोरिटी किस तरह से तय होती है? तो भाई एप्लीकेशन की प्रायोरिटी उसके कंपोनेंट्स जो है बहुत सारे, उसमें से जो जिस कंपोनेंट की हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है उतनी प्रायोरिटी इस एप्लीकेशन की मानी जाएगी। एप्लीकेशंस प्रायोरिटी, ऑल एंड्रॉयड एप्लीकेशंस कंटिन्यू रनिंग इन मेमोरी अंटिल द सिस्टम नीड्स रिसोर्सेज फॉर अदर एप्लीकेशन। जब तक मैंने जो एग्जांपल दिया आपको अभी 5 एप्लीकेशन का, जब तक वो 5 एप्लीकेशन रन हो रही है दूसरी कोई नई एक्टिविटी की डिमांड नहीं आती, इन 5 एप्लीकेशंस को रन होने दिया जाएगा बिना कोई रोक टोक। जब तक कोई किसी भी और रिक्वायरमेंट नहीं आती और एप्लीकेशन की, तब तक इनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। लेट देम एग्जीक्यूट। इफ 2 एप्लीकेशंस हैव द सेम प्रायोरिटी, द प्रोसेस दैट हैज बीन एट दैट प्रायोरिटी लॉन्गेस्ट विल बी किल्ड फर्स्ट। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि नई एप्लीकेशन आती है और उसकी प्रायोरिटी हायर है जितनी एप्लीकेशंस यहाँ पे रन हो रही है उससे, तो इनमें से किसी एक को हटाया जाएगा। अब सपोज जो लो प्रायोरिटी वाली एप्लीकेशन है, ऐसी 2 एप्लीकेशन है कि जिनकी प्रायोरिटी लो है और सेम है, तो दोनों में से किसको किल करना, इसका डिसीजन किस तरह लेगी ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगी कि ये जो 2 एप्लीकेशंस अभी रन हो रही है और दोनों की प्रायोरिटी सेम है और लो है इस नई एप्लीकेशन से, तो दोनों में से कौन सी एप्लीकेशन पुरानी है उसको रिमूव किया जाएगा। It is important to structure our application to ensure that its priority is appropriate for the work it is doing। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन की प्रायोरिटी एप्लीकेशन के अंदर जिस प्रकार का कार्य हो रहा है उसके मुताबिक प्रॉपर होनी चाहिए। एप्लीकेशन स्टेट्स, एप्लीकेशन के स्टेट्स क्या क्या हो सकते हैं? अब एप्लीकेशन का स्टेट उसकी एक्टिविटीज़, उसकी सर्विसेज से बनता है, इन शॉर्ट उसके कंपोनेंट से बनता है। एक्टिव प्रोसेसेस, देखो कंपोनेंट्स विथ विच द यूज़र इज इंटरेक्टिंग विथ इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। देखो, अगर एक्टिविटी के कंपोनेंट्स से अभी क्लाइंट इंटरेक्ट कर रहा है, मतलब कि एक्टिव प्रोसेसेस है, तो एप्लीकेशन का स्टेट क्या हो जाएगा? एक्टिव प्रोसेस। मतलब कि एप्लीकेशन रन हो रही है और उस एप्लीकेशन का कोई स्क्रीन, कोई एक्टिविटी क्लाइंट के सामने है अभी और क्लाइंट उसमें इंटरेक्ट कर रहा है, उसे एक्टिव प्रोसेस कहते हैं। इसमें समावेश होता है एक्टिविटीज़ की जो एक्टिव स्टेट में होती है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स जो रन हो रहे हैं अभी, सर्विसेज जो अभी एग्जीक्यूट हो रही है ऑन क्रिएट ऑन स्टार्ट में, रनिंग सर्विसेज इन फोरग्राउंड, ऐसी सर्विसेज की जो फोरग्राउंड में रन होती है मेन थ्रेड में। अगर एप्लीकेशन का कोई भी ऐसा कंपोनेंट इनमें से कोई एक है अभी कि जो रन हो रहा है क्लाइंट के सामने है, तो उस एप्लीकेशन का स्टेट क्या होगा? एक्टिव प्रोसेसेस। विजिबल प्रोसेसेस, मतलब कि एप्लीकेशन के कंपोनेंट्स विजिबल है लेकिन एक्टिव नहीं है, क्लाइंट उसके साथ अभी इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, उसको हॉल्ट किया गया है, पॉज किया गया है, दिख रहा है लेकिन वो एक्टिव नहीं है, तो एप्लीकेशन का स्टेट भी क्या हो जाएगा? विजिबल बट नॉट एक्टिव। स्टार्टेड सर्विस प्रोसेसेस, होस्टिंग फॉरग्राउंड सर्विसेज, अभी एप्लीकेशन ने अपने किसी कंपोनेंट को होस्ट किया है रन करने के लिए, मतलब कि वो विजिबल, अभी जस्ट विजिबल हुआ है, स्टार्ट नहीं हुआ है। बैकग्राउंड प्रोसेसेस, होस्टिंग बैकग्राउंड प्रोसेसेस, एप्लीकेशन का कोई कंपोनेंट ऐसा है कि जो अभी रन हो रहा है लेकिन बैकग्राउंड में रन हो रहा है, ओके, तो उसकी प्रायोरिटी कम होगी क्योंकि स्क्रीन पे क्लाइंट उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, वो बैकग्राउंड में रन हो रहा है। एम्प्टी प्रोसेसेस, अभी एप्लीकेशन में कोई एक्टिविटी रन नहीं हो रही, फिर भी उसको मेन मेमोरी में, कैश मेमोरी में रखा है, क्योंकि वापस अगर उसको रन करने की आवश्यकता हो तो वापस सेकेंडरी मेमोरी से ना लेना पड़े, डायरेक्टली कैश में से लेकर उसको रन किया जाए, इसलिए परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। देखो, ये एप्लीकेशन के अलग अलग स्टेट्स जो हमने डिस्कस किए उसके मुताबिक उसकी प्रायोरिटी देखो इस तरह से सेट होती है कि एक्टिव प्रोसेस, मतलब कि एप्लीकेशन का कोई कंपोनेंट अभी फ्रंट एंड में है, फोरग्राउंड में है और क्लाइंट उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो उसकी प्रायोरिटी कैसी होगी? हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी। अगर ऐसी एप्लीकेशन को हटाया जाए तो क्लाइंट को बुरा लगेगा, मतलब कि क्लाइंट को लगेगा कि ये तो मैं अभी काम कर रहा हूँ और बीच में से ये
स्क्रीन गायब हो गई, स्टॉप कर दी गई, तो उसको अच्छा ना भी लगे। इसलिए ओएस ऐसी एप्लीकेशंस को टच नहीं करेगा, हो सके तब तक वो उसको टच नहीं करेगा। क्रिटिकल प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी, विजिबल प्रोसेस, मतलब कि पॉज है, शायद विजिबल है, क्लाइंट उसको इंटरेक्ट नहीं कर रहा है लेकिन वो विजिबल है। स्टार्टेड सर्विस प्रोसेस, ये दोनों ही समावेश होती है हाई प्रायोरिटी में। बैकग्राउंड में जो प्रोसेस रन हो रही है या तो जिसको कैश में संभाल के रखा है उनकी प्रायोरिटी लो होती है। तो जब आवश्यकता होती है एप्लीकेशन को रिमूव करने की या स्टॉप करने की, तो लो प्रायोरिटी वाली प्रोसेसेस को पहले सिलेक्ट किया जाता है। एप्लीकेशन क्लास, अब देखो एंड्रॉयड एसडीके में एप्लीकेशन नाम का एक इनबिल्ट क्लास है कि जो प्रस्तुत करता है, रिप्रेजेंट करता है एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को। हमारी हर एप्लीकेशन के लिए उसके साथ जुड़ा एक एप्लीकेशन क्लास होता है। When our application runs, an object of application class is created for our application. जब हमारी एप्लीकेशन रन होती है तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी एप्लीकेशन के लिए एक एप्लीकेशन क्लास क्रिएट करती है। We can extend this application class and override its methods to provide our own implementation of the methods and to handle various events and state transitions within our application. क्या कहा है कि जब हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है, ओके, और उसके हमारी एप्लीकेशन जब रन हो रही है तो उसके लिए एक एप्लीकेशन का एक ऑब्जेक्ट बनेगा। एडिशनली एज ए डेवलपर हम एप्लीकेशन क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं, हमारे खुद की एप्लीकेशन क्लास को हम एक्सटेंड कर सकते हैं और उसकी अलग अलग मेथड्स की जो उसकी लाइफ साइकिल के इवेंट हैंडलर्स है उसको ओवरराइड करके अपना खुद का इम्प्लीमेंटेशन उसमें लिख सकते हैं, जिससे पर्टिकुलर इवेंट के होने पर, पर्टिकुलर स्टेट ट्रांजिशन होने पर हमारा कोड रन हो सके। जिसे कहते हैं कि लाइफ साइकिल को हैंडल करना। सो एक्सटेंडिंग द एप्लीकेशन क्लास इनेबल अस टू, हम क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन क्लास को एक्सटेंड क्यों करें, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, हम क्या कर सकते हैं उसके द्वारा। देखो उसके आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। रिस्पॉन्ड टू एप्लीकेशन लेवल इवेंट्स सच एज लो मेमोरी कंडीशंस, एप्लीकेशन वाइड, एप्लीकेशन की जो इवेंट्स जनरेट होती है उसकी लाइफ के दौरान ऐसी इवेंट्स को हम हैंडल कर सकते हैं, जैसे कि मेमोरी लो होना, डिवाइस में मेमोरी लो हो तो एक हमारी लाइफ साइकिल की एक मेथड रन होती है ऑन लो मेमोरी, तो उसमें हम कोड लिख के अपने खुद के स्टेप्स डिफाइन कर सकते हैं। ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट्स बिटवीन एप्लीकेशन कंपोनेंट्स, एप्लीकेशन के अलग अलग कंपोनेंट्स के बीच में हम ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैनेज एंड मेंटेन रिसोर्सेज यूज्ड बाय सेवरल एप्लीकेशन कंपोनेंट्स, हमारी एप्लीकेशन में जो भी रिसोर्सेज आए हुए हैं उनको हम मैनेज कर सकते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ या कंपोनेंट्स के बीच में। जब आप एक्सटेंड करते हो एप्लीकेशन क्लास को तो कुछ इस तरह का होता है। पब्लिक क्लास, कोई नेम क्लास का एक्सटेंस एप्लीकेशन, फिर आप उसमें एक ये एप्लीकेशन मैंने बताया आपको कि एक एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन क्लास एक ही होगा, मतलब कि ये सिंगलटन ऑब्जेक्ट होगा। ओके, वह सिंगलटन ऑब्जेक्ट ही होगा, मतलब कि इस क्लास का केवल एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो इसके लिए देखो यहाँ पे एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है, वेरिएबल सिंगलटन माई एप्लीकेशन टाइप का, कि जो करंट क्लास है। फिर यहाँ पे गेट इंस्टेंस मेथड है जहाँ से हम इसको रिटर्न कर रहे हैं। और इन सब के बीच में एक बात बता दूँ कि इसका जो कंस्ट्रक्टर होगा वो प्राइवेट होगा, जिसके कारण वो बाहर से कॉल नहीं हो सकता। ऑन क्रिएट में देखो, ऑन क्रिएट में क्या किया, सुपर डॉट ऑन क्रिएट और सिंगल डॉट इक्वल टू दिस, मतलब कि प्राइवेट कंस्ट्रक्टर की भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे ऑन क्रिएट मेथड जो है एक एप्लीकेशन की, उसमें जो करंट ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, करंट ऑब्जेक्ट वो दिस में होगा, और दिस का रेफरेंस हमने किसको दे दिया, इस सिंगलटन को। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्रिएट किया वो हमने किसको उसका रेफरेंस दे दिया, सिंगलटन को। When created, we must register our class in the manifest application, not using a name attribute as shown. अब देखो, जब आपने इस तरह से कोई क्लास बनाया है तो आपको मैनिफेस्ट फाइल में उसको रजिस्टर करना चाहिए। किस तरह से, यहाँ पे देखो, एप्लीकेशन नोड जो होता है मैनिफेस्ट फाइल में, उसके अंदर
एंड्रॉयड कॉलन नेम इज इक्वल टू उस क्लास का नेम लिखना है आपको। ओवरराइडिंग एप्लीकेशन लाइफ साइकिल इवेंट्स, ऐसी कौन कौन सी मेथड्स है एप्लीकेशन की जिसको आप एज ए लाइफ साइकिल मेथड्स ओवरराइड कर सकते हो। The application class provides various methods for events such as low memory, configuration changes, etc. We can override these methods to implement our own behavior in response to these events. ऐसे बहुत सारी मेथड्स हैं, मतलब कि कुछ मेथड्स है कि जो एप्लीकेशन की लाइफ के दौरान अलग अलग समय पे, मतलब कि अलग अलग घटनाओं के आधारित ये कॉल होती है। हम अपनी एप्लीकेशन में इन मेथड्स को ओवरराइड कर सकते हैं और अपना खुद का इम्प्लीमेंटेशन उसमें दे सकते हैं। ये मेथड्स है ऑन क्रिएट, ऑन लो मेमोरी, ऑन ट्रिम मेमोरी, ऑन कॉन्फ़िगरेशन चेंज, ये सभी मेथड्स है जिसको हम ओवरराइड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक स्केलेटन दिया गया है जिसमें इन मेथड्स को ओवरराइड किया है। देखो माई एप्लीकेशन एक्सटेंस एप्लीकेशन, वहाँ पे सिंगलटन ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, वेरिएबल गेट इंस्टेंस में से रिटर्न किया सिंगलटन को, ऑन क्रिएट में सिंगलटन को रेफरेंस दिया। फिर देखो ऑन लो मेमोरी, मतलब कि मेमोरी जब लो हो तो हम अपना खुद का यहाँ पे कोड लिख सकते हैं। ऑन ट्रिम मेमोरी, मेमोरी को जब ट्रिम किया गया, कॉम्पैक्ट किया गया है तो भी मेथड है हमारे पास। ऑन कॉन्फ़िगरेशन चेंज्ड, अगर डिवाइस का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है तो, या फिर एप्लीकेशन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करता है क्लाइंट, तो ये मेथड कॉल होगी ऑन कॉन्फ़िगरेशन चेंज्ड। ये हमने देखा था कि एंड्रॉयड एप्लीकेशंस प्रायोरिटी एंड इट्स स्टेट। तो एंड्रॉयड इज़ वेरी एग्रेसिव इन मैनेजिंग इट्स रिसोर्सेज। कभी भी हमारी एप्लीकेशन को रिसोर्स की आवश्यकता पड़ने पर उसको डिस्ट्रॉय या उसको स्टॉप किया जा सकता है, किल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये था एंड्रॉयड एप्लीकेशन लाइफ साइकिल की। एप्लीकेशन नाम का एक क्लास है। हमारी एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन का एक ऑब्जेक्ट बनता है, एप्लीकेशन क्लास का एक ऑब्जेक्ट जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है, और अगर हम चाहें तो इस क्लास को एक्सटेंड करके अपना खुद का लॉजिक भी इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटीज़ इन एंड्रॉयड।